Hello everyone, welcome to my channel. This is Lokesh and you all are watching LTC tutorials. This video is the second part of the topic tissues. In our previous video on this topic, we learn about many important things. Now today in the second part, we will learn about the further headings. So the headings that we will learn today are what is epidermis, what is complex permanent tissues, types of complex permanent tissues, what are animal tissues, and at last we will discuss about the epithelial tissues, or we can say it as epithelium, and its types. So let's start with the heading what is epidermis. So before entering into this heading, let me ask some general questions with you all. So what we do to protect anything in our surrounding? Like what do we do to protect our smartphones? Any idea? Obviously, we will use tempered glass or Gorilla Glass to protect our smartphones from damage. So now, what do we do to protect ourselves from extreme cold in winter? So, we will use woolen clothes to protect our body from extreme cold. So the conclusion which comes after these questions is that the easiest way to protect anything from damage is simply to cover it. Alright. Similarly, this thing will happen in case of plants too. They also have some protective tissues which cover their entire body. The most common type of protective tissue in plants is the epidermis. So, if we break this epidermis word, this will break into epi, which means up, and derm, which means skin. So in simple words, we can define epidermis as the up skin present in entire plant body which protect the entire plant in various ways. This epidermis protect the plant from mechanical injury, from extreme heat, and also from extreme cold. It also protect the plant from the harmful bacteria and fungi. To understand this epidermis in a well manner, let's just take a look at its characteristics. So as we all come to know that epidermis is a type of plant tissue which protect the plant body. Hence, this tissue might be consist of group of cells, and the cells present in epidermis tissues are very much irregular in shape and also in size. Their cells don't have intercellular spaces between them. These cells are arranged in a complex manner. The cell wall of outer cells present in epidermis tissues are thicker in comparison to cell wall of inner cells. This is because the outer cells of epidermis tissue remains in contact with external environment. So they might be thick. Alright. As we all know that epidermis tissues are present in all over the plant body, yet epidermis tissues are different in different parts of the plant body. So, plants के वो parts जो ground के ऊपर होते हैं और air के contact में होते हैं, उन parts को aerial parts कहा जाता है. ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग. इन parts में plants की stems, branches, flowers, फ्रूट्स और लीव्स आती हैं. सो ये एपिडर्मिस टिश्यूज प्लांट्स की यंग स्टेम्स, यंग ब्रांचेस, फ्रूट्स में, लीव्स में और फ्लावर्स में पाए जाते हैं. इन पार्ट्स में पाए जाने वाले एपिडर्मल सेल्स के आउटर सरफेस में वैक्सी लेयर पाई जाती है. ये लेयर वाटर रेसिस्टेंट यानी वाटर को अपने ऊपर टिकने नहीं देती है. इस वैक्सी लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है. आपने क्या कभी एक बात नोटिस की है कि जब बरसात होती है तो बरसात का पानी प्लांट्स की लीव्स में या फ्रूट्स में या फ्लावर्स में क्या होता है, कभी कभी रह जाता है, टिक जाता है. तो ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी जो वैक्सी लेयर होती है वो वाटर को रेसिस्ट करती है, मतलब वाटर को अपनी तरफ आने से रोकती है. तो क्या होता है कि वो पानी जो है वो नीचे गिर जाता है. तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल लेयर. This is a waxy layer. It calls cuticle layer. इसी लेयर की वजह से पानी जो है वो टिक नहीं पाता. ये पानी हमेशा स्लिप होकर सरफेस पर गिर जाता है.
So this all happens because of the waxy layer present in the leaves, fruits, flowers of the plant. Alright, यही cuticle layer plants को मैकेनिकल इंजरी, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है. अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स और डेजर्ट रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स को कंपेयर करें तो डेजर्ट रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स की क्यूटिकल लेयर और एपिडर्मिस थिक होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेजर्ट रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स अपने वाटर का लॉस कम होने देते हैं, क्योंकि डेजर्ट रीजन्स में वाटर की तो बहुत कमी होती है ना. इसीलिए डेजर्ट रीजन्स में पाए जाने वाले प्लांट्स ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते. ऑल्सो आप सबने टमाटो तो देखा ही होगा, तो जब आप टमाटो के प्लांट को देखेंगे तो उस प्लांट में आप ये पाएंगे कि आपको उसकी स्टेम और ब्रांचेस में छोटे बड़े हेयर ग्रो हुए मिलेंगे. ये हेयर उस प्लांट को एक्सेसिव सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेयर ग्रोथ हुई है टमाटो में वो भी किसकी वजह से हुई है? एपिडर्मिस टिश्यू की वजह से हुई है. ऑलराइट, जो कि उस प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम सनलाइट. सो एरियल पार्ट्स में पाए जाने वाले एपिडर्मिस टिश्यूज की बात करें तो लीव्स में पाए जाने वाले एपिडर्मिस टिश्यूज अलग होते हैं. लीव्स में दो टाइप के एपिडर्मिस टिश्यूज पाए जाएंगे. लीव्स की अपर सरफेस में पाए जाने वाले एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस कहेंगे और लीव्स की लोअर सरफेस में पाए जाने वाले एपिडर्मिस को लोअर एपिडर्मिस कहेंगे. अगर हम लीव्स को बहुत क्लोज से स्टडी करें तो हम ये पाएंगे कि इनकी एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इन स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है. क्या कहते हैं? इनको स्टोमेटा कहा जाता है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर स्टोमेटा दो सेल्स से इनक्लोज्ड होता है और ये सेल्स किडनी के जैसे दिखते हैं. इन किडनी शेप्ड सेल्स को गार्ड सेल्स कहा जाता है. इन स्टोमेटा के कंटिन्यूअसली ओपन और क्लोज होते रहने की वजह से लीव्स से एटमॉस्फेयर में गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं. ऑलराइट, जब स्टोमेटा ओपन होता है तब उसमें CO2 गैस एंटर करती है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और साथ ही साथ वाटर वेपर और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है. ऑलराइट, लैंड्स में पाए जाने वाले प्लांट्स में स्टोमेटा लीव्स के नीचे की साइड होता है और फ्लोटिंग प्लांट्स में की लीव्स में ये अपर सरफेस में देखने को मिलता है. ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है. नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे दैट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. सो दिस ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. रूट्स में पाए जाने वाले एपिडर्मल सेल्स का काम वाटर का ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन करना होता है. इसीलिए प्लांट्स की रूट्स आप अपने आसपास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ग्रो करती है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं. ये रूट हेयर प्लांट के सरफेस एरिया को बढ़ाती है जिससे पानी का ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो पाए. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट्स. सो as we discussed in our previous video that complex permanent tissues are those tissues which are made up of more than one type of cells. These cells are structurally dissimilar but together perform a common function, that is why they call it tissue. The complex permanent tissue of plants are also known as conducting tissue or vascular tissues. As in human body, there is a circulatory system for the movement of food, water and other substances. In the same way, plants also have conducting system which helps in conduction of food and water throughout the plant body. This can be done only with the help of complex permanent tissues. Now we will talk about the classification or types of complex permanent tissues. So the complex permanent tissues are further classified into two categories. First one is xylem and the second one is phloem. Let's talk one by one about these tissues.
So our first complex permanent tissue is xylem. Alright, तो स्टूडेंट्स जाइलम के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को एक इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. आप सभी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फ्लैट्स में वाटर पाइपलाइंस देखी हैं, इजंट इट? ये वाटर की पाइपलाइंस बिल्डिंग की सरफेस से बिल्डिंग के हर फ्लोर में बने घरों में पानी को पहुंचाने का काम करती है. सो कुछ ऐसा ही फंक्शन जाइलम टिश्यू का भी होता है. ये भी प्लांट बॉडी में पाइपलाइंस के जैसे ही फंक्शन करते हैं. प्लांट में पाए जाने वाले ये जाइलम टिश्यू ग्राउंड से वाटर और मिनरल्स को कैरी करके प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में इन्हें पहुंचाने का काम करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट xylem is a tissue which carries water and minerals from roots to the various parts of plants. यहाँ जाइलम टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग सी बात जानने वाली ये है कि जाइलम में वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में यानी कि यूनी डायरेक्शन में होता है. इसीलिए प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हैं. जाइलम टिश्यूज हार्ड होते हैं क्योंकि ये मोस्टली डेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं. अगर हम जाइलम के बारे में आगे बात करें तो जाइलम टिश्यूज 4 टाइप के सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो कि हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स. चलिए डिस्कस करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में. सो ट्रैकीड्स और वेसल्स को जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होती हैं, ये जो 2 टाइप के सेल्स होते हैं जाइलम के, इनकी सेल वॉल थिक होती है क्योंकि ये सेल्स मोस्टली डेड सेल्स से बने होते हैं. ये जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं. ट्रैकीड्स और वेसल्स का स्ट्रक्चर ट्यूब के जैसा होता है. इनका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होने की वजह से ही ये वाटर और मिनरल्स का वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं और ये दोनों प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. नाउ दी जाइलम पैरेन्काइमा आर नोन एज द ओनली लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यू. इन जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स का मेन फंक्शन फूड को स्टोर करना होता है. ऑलराइट, इसीलिए शायद ये लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि अगर डेड सेल्स होंगे तो डेड सेल्स में फूड स्टोरेज नहीं हो पाएगा. इसीलिए शायद ये लिविंग सेल्स में आते हैं जिसकी वजह से इसमें फूड स्टोरेज हो पाता है. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ द जाइलम फाइबर्स आर द डेड सेल्स, ऑलराइट, which are helpful in providing mechanical support to the plant. Now let's talk about the another type of complex permanent tissue, that is phloem. Students, we all know that the leaves present in plants are responsible for preparing food. So now the question arises that how can this prepared food be carried to the other parts of plants? So the answer to this question is the food prepared by leaves can be carried to other parts of plant with the help of phloem tissue. Here in context of phloem tissue, an interesting fact to know about it is that the movement of food from leaves to other parts of plant is bidirectional. Alright, it is bidirectional. In case of xylem, it was of unidirection. एक ही डायरेक्शन में जा रहा था. बट फ्लोएम के केस में ऐसा नहीं है. फ्लोएम के केस में वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में यानी बाई डायरेक्शन में फूड जा सकता है. ऑलराइट, इट मीन्स दैट द फूड कैन बी मूव्ड इन plants in upward as well as in downward direction. Usually the cells of phloem tissues are living and they consist of thin cell wall. Now as like xylem, phloem is also further consist of 4 types of cells, that are sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Now let's discuss about their structures and functions. So the sieve tubes and companion cells in phloem tissues are attached with each other and helps in translocation of food from one part of plant to other part of plant. Alright, now let's discuss the function of phloem parenchyma.
So these cells are mainly responsible for storage of food. Now what is this phloem fibers stands for? So the phloem fiber in phloem tissues are the only cells which are dead in nature. Alright. So this phloem fiber is dead cell in phloem tissue. These phloem fibers are mainly responsible for providing mechanical support to the plant. Alright. These xylem and phloem together are called vascular bundles because they are present in plants in bundles. Alright. Now we will learn about animal tissues. So students, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्रीथिंग के टाइम पर जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो कहाँ जाती है और किसकी हेल्प से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करती है वो? सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी. इन टिश्यूज को एनिमल टिश्यूज कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं. सो ब्रीथिंग करते टाइम जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी लंग्स इन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और लंग्स से होकर ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी के सेल्स में ब्लड की हेल्प से पहुंच पाती है. ऑलराइट, तो हम ब्लड और मसल इन सबको एनिमल टिश्यू मान सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज फाउंड इन बॉडी. दे आर epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the last one is nervous tissue. अब हम एक एक करके इन टिश्यूज के बारे में डीप स्टडी करेंगे. सो आवर फर्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू. लेकिन आज के वीडियो में हम केवल एपिथेलियल टिश्यू तक ही रखेंगे. अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 टिश्यूज के बारे में डीप स्टडी करेंगे. सो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे. सो एपिथेलियल टिश्यू, ये जिसको कि हम सिंपली एपिथेलियम बोल सकते हैं, ये वो टिश्यूज होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की कंप्लीट आउटर बॉडी को और सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर किए हुए होते हैं. ऑलराइट, ये एनिमल बॉडी के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट कैविटीज को भी कवर करे रहते हैं. चूंकि ये एनिमल टिश्यूज और ह्यूमन बींग्स की आउटर बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर किए होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है. Now let's talk about some functions and characteristics of epithelial tissues. So, the most important and main function that epithelial tissues perform is of protection. These epithelial tissues protect the entire human body from external environment. जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे प्लांट टिश्यू में पढ़ा था एपिडर्मिस के बारे में, वो भी उस प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था. लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू. यस, ऑलराइट, दोनों का फंक्शन एक ही है, दोनों प्रोटेक्शन कर रहे हैं. लेकिन वहां पे एपिडर्मिस जो है वो प्लांट का प्रोटेक्शन कर रहा है, पूरी प्लांट बॉडी का, और यहाँ ह्यूमन बींग्स की बॉडी का प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है. ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड. These epithelial tissues protect the entire human body from external environment, and also this tissue separates different internal organs from each other. These epithelial tissues also regulate the exchange of any substance between the human body and the external environment. These epithelial tissues are present at the skin, at the linings of mouth, at the linings of blood vessels, at the tubes of kidney, and so on. As you all know that the epithelial tissues are the protective tissues of animal body, so tell me one thing, that should the cells present in these protective tissues have intercellular spaces between them? Of course not. If there is intercellular spaces present in between the cells of epithelial tissues, then there will be the holes in the protective covering of tissues, and this thing opposes a function of protection performed by epithelial tissue. So that is why intercellular spaces are absent in epithelial tissue. Alright, so the conclusion made is that the cells present in epithelial tissues don't have intercellular spaces between them. These cells are tightly packed with each other. चूंकि
एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग में पाए जाते हैं, तो आउटर कवरिंग में पाए जाने वाले एपिथेलियल टिश्यूज की आउटर सरफेस हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करती है और हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। और जो इस एपिथेलियल टिश्यू की इनर सरफेस होती है, ये हमेशा क्या करती है, ये हमेशा अदर इंटरनल टिश्यूज या अंडरलाइंग टिश्यूज को फेस करती है। लेकिन ये एपिथेलियल टिश्यूज अंडरलाइंग टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी नहीं होते, बल्कि एपिथेलियल टिश्यूज और उसके अंडरलाइंग टिश्यूज के बीच में एक नॉन सेलुलर फाइब्रस लेयर पाई जाती है, जिसको कि हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यूज को उसके अंडरलाइंग टिश्यूज से बाइंड करके रखती है। ऑलराइट, सो ये थे एपिथेलियल टिश्यूज के कुछ जनरल फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनको कि दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सेल लेयर्स के नंबर के बेसिस पर देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड द सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर पाई जाएगी तो हम उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, और अगर एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स की मल्टीपल लेयर यानी कि बहुत सारी लेयर पाई जाएंगी तो हम उसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। अगर एपिथेलियल सेल्स के शेप्स और उनके फंक्शंस के बेसिस पर देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्क्वैमश एपिथेलियल टिश्यू, second is cuboidal epithelial tissue and the third one is columnar epithelial tissues। चलिए सबसे पहले जानते हैं squamous epithelial tissues क्या है। So squamous epithelial tissues thin, flat, delicate, compactly packed और irregular shape के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ये squamous epithelium फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम टिश्यू और सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम। हमारी ह्यूमन बॉडी में सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेटिफाइड भी पाए जाते हैं। तो सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम का मतलब है स्क्वैमश एपिथेलियम टिश्यू की सिंगल लेयर होना। ये सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी की ब्लड कैपिलरीज में, लंग्स की एल्वियोली में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम की, तो ये टिश्यूज हमारी स्किन में, माउथ की लाइनिंग में, ईसोफेगस कैविटी में और एनस में पाए जाते हैं। यहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम का मतलब है कि स्क्वैमश एपिथेलियम टिश्यूज की मल्टीपल लेयर होना। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम कहाँ पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे हमारी फुट में। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज क्यूबॉइडल शेप के सेल से मिलकर बने होते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग्स में और सेलिवरी ग्लैंड्स के पैसेज में पाए जाते हैं। यहाँ ये ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। आप सबने अपनी प्रीवियस क्लास में ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। 8th क्लास में ग्लैंड्स के बारे में था। हर ग्लैंड सेक्रेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ग्लैंड सेल्स के जैसे ही क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स भी सेक्रेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करते हैं और ग्लैंड सेल्स की तरह इन केमिकल्स को सेक्रीट करते हैं। जब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स इस तरह की स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं तो इन्हें ग्लैंडुलर सेल्स कहा जाता है। कभी कभी ये ग्लैंडुलर सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन ग्लैंडुलर सेल्स के कॉम्बिनेशन को ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। स्वेट ग्लैंड्स और टीयर ग्लैंड्स
ग्लैंडुलर एपिथेलियम के एग्जाम्पल हैं। स्वेट ग्लैंड्स मतलब कि जहाँ से हमें स्वेट निकलता है, जिन ग्लैंड से हमें स्वेट निकलता है, और टीयर ग्लैंड जैसे कि जो आंसू जहाँ से हमें निकलते हैं जिस ग्लैंड से। तो ये स्वेट ग्लैंड्स और टीयर ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ही एग्जाम्पल हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज। जैसा कि इनके नाम से ही हम एज्यूम कर पा रहे हैं कि इन टिश्यूज के सेल्स का शेप पिलर जैसा या कॉलम जैसा होता है। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज का मेजर फंक्शन एब्जॉर्प्शन करना और सेक्रीशन करना होता है। ये दोनों ही एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन फंक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होती है और फिर इंटेस्टाइन इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टमक यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये दोनों ही फंक्शन हो रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन का भी और सेक्रीशन का भी। तो कुछ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज की सरफेस पर बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं। ये सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स की आउटर सरफेस में पाए जाते हैं। ये सिलिया म्यूकस का मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाले सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं वो म्यूकस को मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूकस क्या है। तो म्यूकस एक तरह का स्लिपरी और स्ट्रिंजी फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑलराइट, म्यूकस हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ड्राई होने से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव और मॉइस्चराइजिंग लेयर बना लेता है। ये बैक्टीरिया, डस्ट और स्मोक को बॉडी के अंदर आने से रोकता है, इसीलिए म्यूकस हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल भी है। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाए जाने वाले सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज ओवा या एग सेल्स का मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सो फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। In our next video, we will discuss about the connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. So, I hope you like my today's video. If you like this video, so please subscribe and like my channel and share this video also. And don't forget to press the bell icon. Thank you.